Yep. Yes. So we are live. Welcome to another podcast with me on my YouTube channel. Or today I have with me Sarim, Sarim Raza. Sarim के introduction से पहले Sarim has been with me in Nixer and then Lums, and since then he has been into a lot of things. So we'll be discussing that. Or before that, if you would like to subscribe my channel, I would hardly like कि आप सब मेरा channel subscribe करें. And if you want to support me, you can support me on Patreon, on PayPal. You can get in touch with me and I can share the details. And I'm not very much into the aesthetics right now, but in the longer term, I will be doing those. So let's get on with it. Sarim, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक चलिए आप बताओ And कैसे and would you मैं बिल्कुल fit. Would you like to introduce yourself to the audience? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जिंदगी में क्या चल रहा है? And then I can like pick it up from there. चाहिए So I am a graduate from NUMS with a major in management sciences and a minor in public management. I'm from your batch 2020 के batch से हूँ. After graduation, I joined Teach for Pakistan. That's a network partner for Teach for All, present in 60 countries. So what Teach for Pakistan does is recruit promising talent and places them in low-income government schools so that they can understand how educational inequity is propagated through in the system. In the public service delivery system. So I'm currently a Teach for Pakistan fellow, working as a professional commitment. And apart from that, Sherry, I would also. Yeah, Teach for Pakistan. I would like I will pick up from Teach from Pakistan क्योंकि a lot of people apart from Lums, मैंने देखा है कि उनको नहीं like even in Karachi बहुत सारे लोगों को तो Teach for Pakistan थोड़ा सा मुझे पंजाब और उसके ऊपर का कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि कराची में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि टीएफपी क्या है. आई थिंक प्राइमरीली क्योंकि टीएफपी अपनी मेजोरिटी रिक्रूटिंग आई थिंक लम्स से करता है या अराउंड दैट सर्कल से करता है. एक तो so far, how has been your Teach for Pakistan experience? And for the audience, I would just like to tell you that TFP picks a limited number of fellows, at least from LUMS, who are required to teach at a government or a public private school in Islamabad. In the most of the schools are in the outskirts of Islamabad, and you are teaching children around grade 7, grade 8, grade 9, or English or Pakistan studies और इस तरह के आपको subjects पढ़ाने तो नहीं correct नहीं आप. It's all across the board. तो अभी जो है तो first पिछले 2 साल के अंदर TFP was focusing on early childhood education. That's kindergarten to grade 5. लेकिन they have recently been targeting higher grades also. तो इस दफा जो है fellows जो recruit हैं they're also teaching grade 9 and 10. लेकिन प्राइमरी जो फोकस था वो अर्ली चाइल्ड ईयर्स के अंदर था क्योंकि जो इंटरवेंशन है लिटरेसी और न्यूमरेसी की वो जो है अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के अंदर आप अगर करते हैं तो वो जो है इट हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट. तो अच्छा सर जस्ट टू अब थोड़ा सा एको आ रहा है थोड़ा सा अगर आप हेडफोन्स अपने देखो लाइक यू कैन स्पीक अगेन. कैन यू हियर मी नाउ? या लेकिन लाइक थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है. इट्स लाइक द वॉइस इज वेरी क्लियर बट इफ यू कैन थोड़ा सा आई थिंक वॉल्यूम का इशू है या अब वॉल्यूम का भी मैं हेडफोन हटा देता हूँ एंड देन सी अगर आवाज आएगा. हाँ श्योर वी हैव ऑल द टाइम कोई मसला नहीं है. It's a candid thing. No, I can't hear you. Your headphones obviously कर लो मसला नहीं है. It's like हाँ now I can. या सही है थोड़ा सा या थोड़ा सा बस वो एको है वो मसला नहीं है. Maybe it's because of the issue नहीं है. सही है ठीक है. सो मैं बता रहा था कि अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के अंदर ज़्यादा फोकस होता है टीएसपी का बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजंस के बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के अंदर ही होती है. तो इफ ही गेट्स अ गुड टीचर फॉर 2 years दैट विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट. और लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं हम लोग. लिटरेसी इज लैंग्वेज एक्विजिशन और न्यूमरेसी इज मैथमेटिक्स. दीज आर द 2 मेजर थिंग्स जिसके थ्रू जो है बच्चे की एजुकेशन देखी जाती है. ये चीज़ें आ गई तो आगे अच्छा है बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है. एंड दैट्स द मेन रीजन के एसएटीज भी जो हैं ये दोनों चीजें टेस्ट करते हैं. और अभी ये सिर्फ इस्लामाबाद में फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस्लामाबाद ऑपरेट करते हैं यार. अभी जो है तो ओरिजिनली इट वाज इन कराची. जब पीएफपी 2010 में स्टार्ट हुआ था तो जब अमन फाउंडेशन के साथ इनकी पार्टनरशिप थी एंड दे स्टार्टेड विद अमन फाउंडेशन और कराची के अंदर ही पायलट हुआ था. अभी जो है वो जब री रैम्प हुआ फिर बंद हो गया था. फिर उसके बाद जब रीस्टार्ट हुआ था तो फिर इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ.
the SIM government in itself is a very hard government to work with, and the FD, Federal Directorate of Education, is a much easier government. Shafqat Mahmood himself looks after it. So, and they're also open to more experimentation. तो उसकी वजह से जो है आई थिंक TFP जो है इट्स स्टार्टिंग ऑफ विद इस्लामाबाद, लेकिन इट्स प्लानिंग ऑन एक्सपैंडिंग टू अदर सिटीज. तो जब कराची के अंदर भी थे दे हैड एक्सपैंडेड टू लाहौर आल्सो, तो लाहौर के अंदर भी फेलोज पढ़ा रहे थे. और पिछले साल जो है पेशावर के अंदर पिछले मतलब कि 2018 के अंदर पेशावर के अंदर भी. हाँ सही. So the experience itself has been great. I've been able to learn a lot, and I think it has also shown a different side of Pakistan that I was aware of, but being totally मतलब के bottom of the pyramid के साथ एक साल interact करना, वो जो है has revealed a lot of things. And just to add on to it, like so TFP like you can cover up the basic details, but लम से जो मैंने अपने मतलब टाइम लम्स में देखा कि लम से पढ़कर स्पेशली SDSB से मी एंड यू और SDSB ग्रेजुएट्स, एक टिपिकल नोशन है कि मल्टीनेशनल्स में जाना है, और अगर नॉन प्रॉफिट्स में भी जाना है या डेवलपमेंट में भी जाना है तो लाइक places like ACSIS and big NGOs and multinationals. So जब TFP का कोई डिसीजन लेता है तो आई नो कि इट्स हार्ड टू सेल फॉर अ लम्स ग्रेजुएट बैक होम या विद फ्रेंड्स के मैं TFP में काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. तो it's been almost 2 years now, मतलब 1.5 year now, like since we like. So how has that been experienced कि जब you meet your peers from LUMS or IBA in this last year COVID के बाद से, and you tell them कि मैं तो TFE में पढ़ा रहा हूँ, तो what do you think? What's their क्या कहते हैं? What's their response to that? So I think that has been one of the hardest things to do, especially convincing my parents, convincing everyone that this is something that I want to do, regardless of the benefits and the recognition. Okay, out of LUMS, I was looking for an organization that was actually talking about change. And TFP, जैसे ACSIS हो गई या UNB हो गई, they're in a way they're facilitating the present system. And TFP was an organization that was challenging it. So me joining TFP was that reason कि मुझे change पर काम करना था. और जब मैं peer से मिलता हूँ, it's a very hard thing to say because TFP is not just about teaching. It's about teaching, लेकिन जो documentation वगैरह चीजें और data analysis हम लोग साथ साथ करते रहते हैं, they build a lot of skills. So it's not just आप जो है एक teacher बने. तो उसके लिए जो है it's very hard to actually explain this to someone who is not from LUMS. लेकिन LUMS का होता है तो actually the person knows about TFP. बाकी किसी को बताएं आप तो वो जो है TCF के साथ कंफ्यूज कराता है. हाँ, उनको वो लगता है कि वो TCF थोड़ा ज्यादा हमारे यहाँ जरा TCF का ज्यादा सीन है. But yeah, moving on from TFP, so just for everyone to know, TFP is not the only thing Salim has been doing. During his time at LUMS, he started a non-for-profit educational community development program that was called Riayat. Then he was also part of the, how do you spell it, UNC like how do you, और आई थिंक अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस करा उनको, या क्या वो सीन था? वो इमरान खान, तो इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर अभी जो है पहले UNCTAD यूथ फोरम हुआ था, फिर उसके बाद जो UNCTAD मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बोल रहे थे, तो इस तरह जो इमरान खान ने भी एड्रेस किया था UNCTAD की कॉन्फ्रेंस को. तो बारबाडोस के अंदर जो हो रही थी, बारबाडोस के अंदर होनी थी लेकिन इसका हाइब्रिड हुई है. तो उनकी जो है स्पीच समथिंग दैट हैज बीन पिक्ड अप बाय अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि इमरान खान टॉक्ड अबाउट वैक्सीन इनइक्वालिटी, एंड दैट हैज बीन समथिंग कि सेक्रेटरी जनरल ने भी रीट्वीट की थी कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD, नॉट एंटोनियो, तो उसने जो रीट्वीट भी की थी कि दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट कि वैक्सीन इनइक्वालिटी डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा है. लेकिन just to so people हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब U और N लोग सुन लेते हैं ना, तो लोगों के लिए हर चीज UN हो जाती है, जहाँ वो UN असेंबली और न्यूयॉर्क लोगों का दिमाग में आ रहा होता है. तो let's just for the audience, like what is UNCTAD, what are other UN organizations, and your whole contribution in the last 2-3 years. आप जितनी conferences में भी गए हो, तो if you can just explain for those who want to pursue this in the future as a career maybe. सही है. तो I think it's very apparent and it's very self-explanatory also. The UN is the umbrella body
एंड यूएन के अंदर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं बोलूंगा लेकिन डिफरेंट बॉडीज हैं दैट आर fully functioning and they have a structure of their own that is linked to the UN. So UNCTAD is the United Nations Conference on Trade and Development, वो तकरीबन 1960s के अंदर बनी थी और it's headquartered in Geneva. And the main purpose of the this body is to actually bridge the inequality between the developing and the developed world. But So that UNCTAD itself is sort of a youth chapter of UN, if I can say that. नहीं सही UNCTAD जैसे UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सही है, तो वैसे ही जो है एक बॉडी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा सही है, जो है एक यूथ का, अच्छा सारी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं यूथ को एम्पावर कर रही होती हैं, तो उनका जो UNCTAD यूथ का, हाँ UNCTAD इज द बॉडी, उसके साथ जो एंड दे हैव अ प्रॉपर पाकिस्तान चैप्टर एज वी स्पीक, या वो कोई कहीं और से उसको ऑपरेट कर रहे हैं? UNCTAD सबकी प्रेजेंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है, द प्राइमरी यूनियन बॉडी की जो प्रेजेंस है दैट्स UNDP, और UNCTAD के जो है एक दो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ई फेलो प्रोग्राम है उनका अली बाबा के साथ, तो ये जो बहुत सारे फॉर एग्जांपल दवाई हो गया या फाइंड माय एडवेंचर, दे आर ऑल ई फेलोज। तो जब हम ओके दैट्स द नेटवर्क। और जो चैप्टर की बात कर रहे थे, वो चैप्टर जो है, तो आई एम द फाउंडर एंड कोऑर्डिनेटर फॉर द UNCTAD यूथ एक्शन हब इन पाकिस्तान। तो यूथ एक्शन हब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई लुक आफ्टर, एंड दैट इज लिंक टू UNCTAD के UNCTAD की अपना ऑफिस यहाँ पे नहीं है, लेकिन दे आर ओपन टू कनेक्टिंग अस विद अदर यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन इन इटसेल्फ इज लाइक अ फैमिली ना, मतलब कि एक जो है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और फिर वो नीचे दे have multiple no, I get it. Okay, say so if like okay, that's fine, but again I would also like to ask you to share about your experiences in the recent past जो आप जब आप फ्रांस गए थे, and that about your engagement over there, और उससे पहले भी जो तुम्हारी engagements रही हैं, like your whole, क्योंकि you've shared that experience with me personally, but your whole opinion about Pakistan itself, because I have a lot to say about that, how Pakistan is perceived in Europe, but how was that? Like, you were there on a specific goal and you networked with different people. So I think, so I have participated in 3 conferences on an international level. The first was the United Nations Conference on Trade and Development, Youth 2018 के अंदर हुई थी जेनेवा के अंदर, I was a participant in that. This was World Forum for Democracy 2019 के अंदर जो स्ट्रासबर्ग के अंदर हुआ था। I was part of the youth delegation of the Council of Europe to the World Forum for Democracy. And उससे पहले जो है I had in the same year 2019 I had gone to Oslo for the Our Ocean Youth Leadership Summit. So that was about sustainability and about how you can create businesses that can tackle the problems that our oceans are facing. तो ये 3 engagements के अंदर मैं था। और तो perception की बात करें तो I completely agree with you कि it's a very hard thing कि आप जो है persuade करना पड़ रहा होता है लोगों को कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। So the first time that I actually experienced this was at the UN. तो UN के अंदर जो है पाकिस्तान, तो हर कंट्री का स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, सारे मुल्कों का लगा हुआ था सिवाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के तो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना पूरी दुनिया में, हमारे जो वो होते हैं, हम लोग वो उनका नहीं लगा हुआ था, देयर वाज नो स्टॉल। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं हो रही होती। एंड उसके अलावा भी द जनरल डिस्कशन ये है कि आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट स्पीकिंग, कि परसेप्शन जो है ऐसा लग रहा होता है कि एज अ पाकिस्तानी है आपके ऊपर एक प्रेशर है टू प्रूव दैट यू नॉट बैड, कि आप हैं, आपका मुल्क इतना पीछे नहीं है। I can totally agree with that, क्योंकि मुझे तो खैर सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं यहाँ पे, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ इन पॉलिटिक्स एंड थिंग्स लाइक दिस, तो मेरे कोर्सेज आई एम डूइंग, सो माय मास्टर्स इज इन सोशल मीडिया एंड सोसाइटी। तो बहुत इस तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आप पॉलिटिक्स और मीडिया को बार बार डिस्कस करते रहते हैं, और देयर इंटरप्ले, और मतलब रैंडम
चीजों पे भी ना मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार नाउ व्हाट डू आई से, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे था जब वो पूरा अभी भी जैसे इवॉल्विंग सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर, हाँ और मैं जितनी एंगेजमेंट्स में मैंने पार्ट लिया है उनमें पाकिस्तान का नाम तो ना ऐसे बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखा हुआ आता है पाकिस्तान का नाम। एंड सो एक और मतलब मुझे ना एक और मसला भी लगता है अब, a lot of Indians and a lot of people from Bangladesh, उनका ना पता नहीं क्यों बट पीपल नो कि हाँ यार दिस गाय फ्रॉम, वो एक है बस कि दिस गाइज आर फ्रॉम इंडिया। अब अब मुझे नहीं पता इज इट द जेनेटिक्स और इज इट द एथनिसिटी और व्हाट, बट अब लोगों को नहीं, अब जो हम लोग हैं ना, हम लोगों को ज्यादातर लोग या तो अरब समझते हैं या वो टर्किश समझते हैं या इजिप्शियन, मतलब अगर मैं किसी को नहीं बताऊं ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उनको प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ देम उनको नहीं पता चलेगा, उनको थोड़ी सी वाइब आएगी टर्किश इजिप्शियन सब आगे पीछे इस तरह का कोई। अब आई डोंट नो व्हाई दैट इज, बट ये मसला है, हमारी कोई आइडेंटिटी एज सच फॉर्म ही नहीं हुई। लाइक आई डोंट नो व्हाट आर पीपल डिप्यूटेड ओवर देयर हियर डू ऑल द टाइम, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम मतलब। वो जो देख के पता चल जाना पाकिस्तानी है, तो आई थिंक दैट्स वेरी हार्ड। पाकिस्तानी हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इंडियंस हो जाए, तो बांग्लादेश एंड इंडियंस दे हैव दैट ज़्यादा ब्राउन कलर। पाकिस्तानी प्रॉब्ली जो है यस, दे वर, हाँ दे बट आर सो तो मिक्स्ड अप, हम लोग इतने कोई मिक्स हो गए हैं इन डिफरेंट एथनिसिटीज, लाइक वी हैव क्योंकि डिसेंडेंट्स फ्रॉम ईरान और हाँ, अफगानिस्तान और ऊपर से और पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब समझ नहीं आती लोगों को। तो उसकी वजह से भी जो अरब डिसेंडेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के, क्योंकि शेख जैसे हैं, मतलब कि हम लोग जो हैं, सिंध जो है वो सऊदी अरब से बहुत करीब है, तो बहुत ज़्यादा जो है अरब पहले जो हैं वहाँ हाँ पे वो बस आहिस्ता रहे हैं। आहिस्ता इधर ही आए थे ना, मतलब हमारी ये तो कोस्टल बेल्ट सारी, क्योंकि हाँ मिडल ईस्ट के बहुत क्लोज है, और फिर हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है वो अफगानिस्तान से बहुत क्लोज है। सिर्फ एक जो हमारा एरिया है जो इंडियन पंजाब से कोइंसाइड करता है वो हमारा पंजाब है। लाइक पीपल फ्रॉम लाहौर एंड हाँ पीपल फ्रॉम दिल्ली आर नॉट दैट डिफरेंट, लाइक सो हाँ या दैट मेक्स सेंस। बट अगेन अब यूएन की हमने बात कर ली, एंड नाउ आई वुड लाइक टू गो ऑन टू अ वेरी टची सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस, लम्स का जो पूरा एक्सपीरियंस था, लाइक क्योंकि इट्स बिन सही लाइक है। 1.5 years, most of our colleagues are working, some of them are in masters, some of them are doing different things. How would you take that, like मतलब लम्स itself कैसा था, क्योंकि बहुत लोगों की मिक्स्ड इंटरप्रिटेशंस होती हैं अबाउट लम्स, especially when I talk to them right now. So I think LAMS for me was a very good experience. It actually made me discover a lot of things. लेकिन मेरी जो एक कंटेंशन है LAMS के साथ वो ये है कि LAMS के लोग जो हैं बबल के अंदर रहते हैं, और इवन इन द डेवलपमेंट सेक्टर इटसेल्फ जो लोग डेवलपमेंट के अंदर भी काम करते हैं वो असल में समझ नहीं पा रहे होते कि असल में चीज़ें हो क्या रही हैं। उनको बस सो LAMS के स्टूडेंट्स आर सो वन ऑफ थिंग्स दैट आई, मेरी कंटेंशन ये है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू के ऊपर जाते हैं rather than the content of the thing. हम True. लोग को जॉब चाहिए तो ब्रांड वैल्यू देखते हैं, हम नहीं देखते कि क्या आई काम कर थिंक रहे हैं। रिक्रूटर भी ना, मतलब पाकिस्तान कराची और लाहौर में तो मुझे लगता है रिक्रूटर भी ना बस वो लम्स देखता है ना, वो कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो इस बंदे ने किया होगा, इसको रख लेते हैं। लेकिन आई डोंट नो, दैट कैन बी माय ओपिनियन, बट एक वो इतना एस्थेटिक किस्म का ब्रांड बन गया है लम्स, आईबीए और मतलब अच्छा, जीआईके और इतना नस। अच्छा ब्रांड भी नहीं बना है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट रिक्रूट फ्रॉम लम्स बिकॉज लम्स के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अलमनाई हैं, वो जो है जॉब स्विच बहुत करते हैं, so it's very hard to retain nums here, and it's I think it's ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स पास होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद आपसे निकल के मेरा फला दोस्त जो है वो अपनी जॉब उसने स्विच की है, तो मुझे भी मैं भी आई कर नीड रहा टू हूँ। लुक फॉर समथिंग बेटर। तो और बहुत सारी एचआर जो हैं दे डोंट रिक्रूट फ्रॉम नम्स बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक या दैट्स एक्चुअली ट्रू, पता है क्योंकि लम्स का परसेप्शन इटसेल्फ पाकिस्तान, मुझे लगता था सिर्फ पाकिस्तान में है डिस्टॉर्टेड, लेकिन यहाँ पे भी व्हेन आई टॉक टू पीपल हु नो अबाउट लम्स, उनका भी कोई अजीब सा लम्स का परसेप्शन है। उनको नहीं पता लम्स क्या है, लम्स के अंदर क्या होता है, बट वो जो टिपिकल लम्स का परसेप्शन है ना, जो जो हाँ करीम ड्राइवर परसेप्शन ऑफ लम्स है, मेरे ख्याल से उनका भी अभी तक उनका ये परसेप्शन है। बट लाइक वन मोर थिंग कमिंग ऑन टू दैट, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द हाफ ए मार्क, ये लास्ट ईयर ये बकरा ईद से क्या एंटरप्रेन्योरियल आपको वाइब्स आई थी, एंड यू वेंट ऑन टू द कैटल बिजनेस, लाइक नॉट कैटल बिजनेस इटसेल्फ बट लाइफ स्टॉक। yeah, livestock, and I won't say poultry, but like जो typical associated with बकरा ईद होता है, like
Tell us something about that. सही है। तो कोविड था, कोविड के अंदर वी आर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स। आई स्टिल एम एन एक्सट्रीमली एंटरप्रेन्योरियल पर्सन ना, मतलब कि मुझे चीजें बनाने का शौक है। तो हम लोग बैठे हुए थे, कोविड आने वाला था। कोविड भी ये था कि लॉकडाउन वाज सीरियस, तो वी वर थिंकिंग कि अभी लॉकडाउन है, लोग कैसे वो खरीदेंगे बकरे गाय वगैरह, अपने कुर्बानी की जानवर किस तरीके से खरीदेंगे। एंड एन आइडिया पॉप्ड इनटू आवर हेड्स, मी एंड माय 3 अदर फ्रेंड्स, कि हम लोग जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं दैट अलाउज यू टू रजिस्टर ऑन एज वेंडर्स, और अपने जानवर जो है आप पोस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बायर्स कैन लुक एट द एनिमल्स, विजिट द प्लेस, और उसके थ्रू जो है एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ sacrificial animals के ऊपर काम करें। So that was something that popped into our head, and हम लोगों ने उसी आइडिया को जो है मवेशी मंडी के अंदर ट्रांसलेट किया था। एंड तो अब उसको 2 साल हो चुके हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इज दैट द एग्रीकल्चरल मार्केट इन पाकिस्तान इज ह्यूज, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर डिजिटाइजेशन। तो जैसे अभी जो है, आई थिंक ताजा इज अ स्टार्टअप फ्रॉम एन एक्स सिविल एंड एक्स एयरलिफ्ट पर्सन। They recently raised $2 million in pre-seed. Yeah, that's a lot. Pre-seed. Seed भी अच्छा, नहीं, pre-seed में 2 million. Okay. हाँ, तो उसके अंदर जो है वही है कि the agriculture space is very big. We are an agricultural I heard economy. about it. ये मैंने पढ़ा था कि about ये जो agriculture का scene है, yes. So our primary purpose of doing Maveshi Mandi was starting somewhere and then looking at the entire agricultural market. And one of the things that we're currently doing is we're trying to work on a supply chain for the meat industry. कि मतलब कि जो कसाई है, कसाई को गोश्त मंगवाना होता है, वो गोश्त कैसे मंगवाते हैं, क्योंकि गोश्त की जो मार्केट है इट्स वेरी फ्रैगमेंटेड। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर करंटली डूइंग इज कि हम लोग जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसके थ्रू जो है जो फ्रैगमेंटेड मार्केट है मीट की, उसको जो है यूनिफाई कर सके, because there's a lot of potential in that. And I think one of the other startups is also working on along those lines. It's known as Goat for Water, if you've heard of it. So but yeah, maybe. लेकिन so you guys have, so basically like वो जो पूरा process था, क्योंकि I would like to touch upon this subject, क्योंकि हमारे यहाँ बकरा ईद का जो पूरा concept है वो एक festivity है, right? मतलब वो एक क्या कहते हैं, एक family get together, then you have barbecues and पूरा then they have this religious element, but उसको automate करना, चलो हम लोग तो समझ जाएंगे कि जी ये ई मंडी क्या है और ये हम दराज पे कल को जानवर ले रहे हैं, स्क्रॉल करके हम जानवर ले रहे हैं, बट ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइवस्टॉक बायर्स इन द बकरा ईद सीजन आर मतलब वो pre-90s pre-80s पीपल हैं जिनके पास बाइंग डिसीजन है, जिन्होंने जिनकी जेब से पैसे निकलेंगे टू बाय अ बकरा या कोई भी चीज, तो उनको कन्विंस नॉट अ सिंपल, मतलब कि इट्स नॉट अ सिंपल बाय, इट्स अ वेरी लो कॉस्ट सेव करके एक कुर्बानी का जानवर खरीद, एंड दे हैव दिस सेंटिमेंटल वैल्यू विद इट ना, वो पूरे साल के बाद, और पूरा एक मोहल्ले की वाइब है कि जी इसने मतलब वो एक उसमें मैं चलो शो ऑफ तो नहीं कहूंगा, बट वो एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपने लास्ट ईयर आप गए 10 लोग गए मंडी लेकर आए जानवर, और इस साल आप सिर्फ फोन से ऑर्डर करके मंगा लिया आपने, तो वो जो डिफरेंस है फॉर अ लॉट ऑफ आवर पीपल वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं समझ। ठीक है कोविड है, बट you and I both know कि COVID कितना important था for our people in this last year and a half. तो did you had any experience जहाँ mid age fellow या कोई 40-50 plus बंदे ने आपके साथ एक conversation strike करी हो कि why are you selling animals like this? वो तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सबने बोला था कि कोई नहीं खरीदेगा, एंड दैट वाज ट्रू टू एन एसेंस आल्सो। लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस ये नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन जानवर खरीदें। व्हाट वी सॉ वाज एन ह्यूज ऑनलाइन स्पेस, ह्यूज फेसबुक ग्रुप, जिसके ऊपर जब किसी को जानवर बेचना होता था तो वो जो है वीडियोस वगैरह लगा रहा होता था, तो गोट्स ऑफ सिंध हो गया, गोट्स ऑफ पंजाब हो गया, इट्स अ ह्यूज स्पेस। टिकटॉक के ऊपर भी ये चीज हो गया। तो व्हाट वी वांटेड टू डू वाज कि हम लोग को ये पता था कि हम लोग जो है ये ऑनलाइन बेचने वाली जो चीज है, दैट्स समथिंग दैट we have to pitch, लेकिन our long term goal is to digitize that space। जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे OLX ने किया था, OLX पार्कीज है, तो पुरानी गाड़ियां जो है फेसबुक ग्रुप्स पर पहले भी बिकी थी, उन्होंने उस मार्केट को उसको स्ट्रक्चर कर लिया, एग्रीगेट किया।
तो हम लोग भी इसी चीज को फोकस करें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर किसी को बेचना हो जानवर किसी को, क्योंकि हम लोग ने इस बार जो है दिस टाइम वी एक्चुअली वेंट इन द सप्लाई चेन ना, तो हम लोग इस बार गाँवों से हमने प्रोक्योर किए थे एनिमल्स, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट सप्लाई चेन एलिमेंट आल्सो, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्ट्रगल्ड विद वाज कि हमें पता नहीं था कि कौन सा जानवर कहाँ पे खड़ा हुआ है, और आप शहर के अंदर रह रहे होते हो तो आपको जो है नहीं पता होता कि भाई कहाँ से आप जो है जानवर ले सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू डू इज कि हम लोग जो है जो लोग अपने जानवर बेचना चाहते हैं या लाइव स्टॉक बेचना चाहते हैं उनको विजिबिलिटी, तो टू एंड्स के ऊपर काम करें। द फर्स्ट इज टू वर्क ऑन एग्रीगेटिंग दैट मार्केट जहाँ पे लोग जो है वीडियोस वगैरह पोस्ट करें अपने लाइव स्टॉक की टू सेल देम, एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन करेंटली इज टू एग्रीगेट द मीट मार्केट, क्योंकि सिनर्जीज हैं दोनों जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो वो एक सप्लाई चेन का मसला हम लोग हल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपके कसाई हैं उनको बहुत मसला होता है कि उनको गोश्त मिलने का, so we're working on that end also. We're working on two ends currently. And And we have pivoted our project. Do you wish to continue it, like, matlab, in the longer term? It's a good experience. वैसे भी it's like हमारा एक partner farm भी है. It's a good experience. It's not something that we have 4 people and every person is doing their own bit. His thing. His thing. So I think I would continue it. Lekin it gets hard sometime also. Lekin just the entire experience is good. And it has a lot of potential also, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर अभी डिसरप्शन आएगी और एग्रीकल्चर के अंदर आप हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। और आई थिंक जिस हिसाब से हमारे स्टार्टअप्स, क्योंकि एक टाइम आया जब सब राइड हेलिंग में घुस गए, एक टाइम आया जब सब टेक में घुस गए, एक टाइम आया जब सब ग्रोसरीज और B2B में घुस गए। अब आई थिंक द नेक्स्ट वो जो हमारा फेज आएगा ना हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का, वो मुझे लग रहा है वो सीड के अंदर और वो इटसेल्फ एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, क्या पता कल को हम एग्रीकल्चर लैंड को भी ऑटोमेट कर सकें, और क्या पता कल को ज़मीन.com की तरह एग्रीकल्चर लैंड बिक रहा हो, मतलब 100 एकड़ एप्पल फार्म बिक रहा हो, ऑर्किड, मतलब वो एक, क्योंकि पाकिस्तान हैज अ लॉट इन दीज एरियाज, मतलब अगर लोग चाहें तो, मतलब लाइक डू यू सी के फ्यूचर में एग्रीकल्चर का सीन है? मतलब मुझे लगता है फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट के अंदर है। तो अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं पाकिस्तान के अंदर, so अभी जो है the ex-CEO of Acumen Pakistan recently started a venture capital fund, and they also invested in an agri-tech startup known as बाखबर किसान, और उसके अंदर बाखबर किसान के अंदर वही है कि आपको जो है इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं जिसके अंदर पता चल रहा है कि आपको सीड किस तरीके से लगानी है सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा ताज़ा का जो है अभी इन्वेस्टमेंट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट $2 मिलियन इन्वेस्ट किया, तो अभी पहले से ये स्पेस है और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं because they know about the potential of the agriculture space. Lekin they are also wary of the technicalities of it. So for example, सबसे ज़्यादा जो चीज़ चली है वो farm to table है, कि farmers को directly connect किया जाए। अच्छा, to okay, मतलब मिडिल मैन को जो है थोड़ा सा नहीं, that's actually very interesting, क्योंकि I remember I took a course with Mohsin Bashir, public admin का, उसमें हमने पढ़ा था, या नहीं सॉरी, I think ऐसे नाने वाले कोर्स में था कि हमारे प्रीपेड कैरियर्स ने ये किसानों के लिए एक इन्फोग्राफिक सॉर्ट ऑफ मॉडल लॉन्च किया था, जो उनको फोन पे मैसेज आया करता था, जो कि बेसिकली उनको गाइड करता था। आई थिंक जैज ने किया था या यूफोन ने किया था, मुझे याद नहीं है, बट वो किसान को ना टेक्स्ट मैसेज किया करते थे और उसमें बताया करते थे कि जी अगर आप आज बारिश होने वाली है, वेदर इस तरह का होगा, सीड इस तरह लगाना है। तो मतलब ये चीजें पाकिस्तान में बहुत टाइम से हो रही हैं, लेकिन वो उस स्केल पे ऑब्वियसली, लेकिन ये बाखबर किसान कर रहा है, जो बाखबर किसान को मैंने बताया था ना, ये डू द सेम थिंग। तो उनके ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं जहाँ पे पता चल जाता है कि वेदर अपडेट मिल गई आपको पता चल गया कि कौन सा सीड लगाना है, अभी कोई स्टॉर्म आ रहा है तो उसको पता चल गया, कोई पेस्ट अटैक आ रहा है उसको पता चल गया। तो इट्स एन इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो उनके जो यूट्यूब पेज है उसके ऊपर दैट्स देयर मेन मोनेटाइजेशन का तरीका होता है। तो मतलब isn't it like, मतलब basing your whole revenue stream from a YouTube page, वो भी in Pakistan, like I don't deem it as like sustainable. That's a revenue stream that I know of. उसके अलावा भी maybe they have like one-on-one sessions, or
इस तरह की हाँ चीजें भी हो, या मे बी अभी उन्होंने सोचा हो कि जस्ट टू लाइक मेक पावर वर्ल्ड, और कल को अगर बड़े एग्रीकल्चर जो हमारे लाइक लाइक पीपल लाइक द तरीन ग्रुप और वो सब अगर इसके अंदर स्टेप इन कर गए, क्योंकि दे हैव लाइक फार्मर्स फार्मिंग थाउजेंड्स ऑफ तरीन एकर्स ग्रुप ऑफ इज देयर लैंड। नॉट द पोटेंशियल। तो इवन जो बड़े फर जो एग्रीकल्चरल प्लेयर्स हैं पहले से, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल इंग्रो है या फौजी फर्टिलाइजर है, they know that the potential is not with them, the potential is with small scale farmers, और उसको जो है लोग टारगेट कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल फार्मर्स, क्योंकि अच्छा। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही टूटी हुई मार्केट को एग्रीगेट किया, और पाकिस्तान के जो जो एग्रीकल्चर के अंदर टूटी हुई मार्केट है, दैट्स स्मॉल स्केल फार्मर्स। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स को जिसने एग्रीगेट किया, उसको जो है ही कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन, एंड दैट्स समथिंग दैट वी आल्सो आर प्लानिंग टू डू। कि जो लाइफ स्टॉक के मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 जानवर हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा जानवर नहीं है कि मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल फौजी मीट को सप्लाई कर सकूँ, लेकिन मुझे फिर भी बेचने हैं वो जानवर। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर मेकिंग अ मार्केट फॉर दीज़ पीपल जिनके पास 5 जानवर हैं या 10 जानवर हैं, और उनको बेचते हैं। तो दैट्स समथिंग अच्छा, दैट वी हैव इन डू यू थिंक, एक तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें, एक तो है ना बकरा ईद का पूरा सीजन ना, जिसमें मतलब हर लेमैन को जानवर चाहिए होता है, एक है पूरे साल एक लाइफ स्टॉक का पूरा प्रोसेस है, अपार्ट फ्रॉम द मीट मार्केट्स भी, मतलब लोगों के फार्म से पूरे पूरे साल लाइफ स्टॉक आता है, उसको फीड किया जाता है, फिर उसको आगे सप्लाई किया जाता है, जो पूरी मीट मार्केट इटसेल्फ है, जिसमें अब प्लेयर्स लाइक मीट वन आ गए हैं, और इस तरह के और दो नाहीद और इस तरह के प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं, जो मतलब कन्वीनियंस के तौर पे, जो आपको नहीं कहते कि आप गोश्त की दुकान पे जाओ जो मक्खियां घूम रही हो, जो आपको एसी में गोश्त बेचते हैं। डू यू थिंक आगे जाके ये प्लेयर्स भी और आएंगे पाकिस्तान में, जहाँ मतलब ये आई थिंक मीट वन का जो पेरेंट ग्रुप है उनके और भी कोई मीट सब्सिडरीज है, मुझे नाम नहीं आ रहा, आई थिंक इट्स कॉल्ड अल शहीर ग्रुप या इस तरह का कोई सीन है, बट ये कितना ऑटोमेट होगा मीट आई इटसेल्फ? थिंक अभी जो है इफ यू हैव हर्ड से एक कंपनी है दैट रिसेंटली वेंट पब्लिक आल्सो, एक आईबीटी गोल्ड मेडलिस्ट उसका सीईओ है, मीटिंग मीटिंग के नाम से, इफ आई एम नॉट या मिस्टेकन। वो जो है गाय की वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं जो यहाँ पे नहीं खाई जाती। फॉर एग्जाम्पल आनते हैं, वो यहाँ पे जो है उसकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बाहर जो है बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो जो है उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अभी जो है दे आर ग्रोइंग, एंड उसकी वजह से जो मीटिंग पब्लिक आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसके अंदर पोटेंशियल नज़र आया। तो अगर आपका रिस्क रिस्क का पता है, रिस्क का तो पता होगा। रिस्क का तो तो डेफिनेट। रिस्क तो रिस्क में भी इस दफ़ा बकरा ईद के अंदर रिस्क ब्रीड्स के नाम से अपना एक एंटरप्राइज लॉन्च की थी, जिसके अंदर वो जो है वेटेड जानवर ऑनलाइन बेच रहे थे, एंड द ओके। प्राइम, हाँ, एंड तो दैट वाज समथिंग दैट दे वर डूइंग, क्योंकि उनकी प्रोक्योरमेंट जो है उनकी सिनर्जीज बन गई थी ना। तो उनका जो है फॉर एग्जाम्पल वो तो जो फैमिलीज को फीड करते हैं उनके लिए तो वो करते हैं कुर्बानी, और उनका जो भी मीट आता है वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो है प्रोक्योर कर रहे होते हैं बहुत सारे जानवर। तो व्हाट दे डिड दिस टाइम वाज कि जो प्रोक्योरमेंट है लार्ज स्केल के ऊपर, उसके साथ उन्होंने जो है रिस्क ब्रीड्स के की भी प्रोक्योरमेंट की, वहाँ पे जो है फार्म के अंदर रखा और उन जानवरों को बेचा, और उसके थ्रू जो रेवेन्यू आया दैट इज अगेन यूज्ड टू सब्सिडाइज देयर कॉस्ट। अच्छा, ओके, वो आई गेट इट, लेकिन आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू इट, क्योंकि मैं कभी भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था लाइक बड़े होते हुए भी ये पूरा जो पूरा बकरा ईद का सीन होता है, बट हमारे यहाँ बकरा ईद एंड कंपेयर बकरा ईद टू ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक यू हैव कॉम्पाउंड्स, यू हैव स्लॉटर हाउसेस, वहां पे आपके टैग्स होते हैं, आपको ईमेल पे बता दिया जाता है कि ये पूरा सीन है। डू यू थिंक ये जो हमारे यहाँ ऑटोमेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, और जैसे जैसे लोग कन्वीनियंस को प्रेफर कर रहे हैं, एंड पीपल डोंट हैव रियली द टाइम टू गो टू मंडीज एंड ऑल, डू यू थिंक ये जो हमारा कल्चर है मोहल्ले वाला और ये जो पूरे जानवरों को घर पे, ये कम होगा या ये बढ़ेगा? क्योंकि आई पर्सनली सी ये कम होगा, क्योंकि आई नो पीपल जिनके लिए मंडी जाना जो है ना एक एक पार्ट ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम था, और फॉर द लास्ट 2 years सिंस कोविड हिट दे प्रेफर्ड कन्वीनियंस ओवर गोइंग ऑल द वे एंड रिस्किंग देयर हेल्थ। सही है, तो डू यू थिंक दैट कल्चर वुड डाई डाउन? सो आई थिंक डेफिनेटली एक जो है इट विल सी अ डिक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा, बिकॉज दैट्स वेरी रेलिवेंट टू द रिलीजियस वैल्यूज दैट वी हैव। तो क्योंकि जो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी ये बोला जाता है कि आप जो है जो कुर्बानी का जानवर है उसे तकरीबन 1 महीना पहले लेकर आ जाएं, और आप जो है हाँ। उसको घर पे रखें,
उससे जो है खाना खिलाएं, मतलब कि उसकी देखभाल करें, सब चीज़ें करें कि जब आप उसको ज़बह करें तो आपको कुछ फीलिंग आए। तो वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं खुद अपने एनिमल्स लेकर आते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी है कन्वीनियंस की वजह से कम होगी कि लोग जो है ड्रॉप आउट करेंगे इस मार्केट से, और ये ऑलरेडी हो रहा है। मतलब जैसे कराची के अंदर जो है बहरिया टाउन के अंदर ये तो जो स्लॉटर हाउसेस है सारे, तो वहाँ पे जो है बहुत ही कन्वीनियंट। एंड बेरिया टाउन सेल्स ऑन द वेरी फैक्ट कि वो क्लीन है, वो एक अच्छी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देता है जो आपको मिडिल ईस्ट में आगे मिलती है। तो अगर उन्होंने भी वही गंद मचाना शुरू कर दिया उस तरह का, तो दे आर लूजिंग ऑन देयर यूएसपी। लाइक अच्छा, इसी में हम थोड़ी और बात करते हैं कुर्बानी के बारे में। मैं कोई लाइक हम दोनों कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, बट ये जो पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पिछले लाइक पोस्ट इमरान खान जो हमारा हम जो बल्कि पोस्ट 2019 जो हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर फेस कर रहे हैं, वो आपको नजर आता है लोगों के अंदर, कुछ चीजों में आपको नजर आता है। क्या वजह है कि डिस्पाइट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड डिस्पाइट द राइजिंग फूड एंड कमोडिटी एंड पेट्रोल प्राइसेस, हमारी जो जो लास्ट अभी परचेज हुई है 2020 में तो फिर कम, लेकिन जो अभी हुई है लेटेस्ट जो हमारी बकरा ईद थी, people keep on spending millions and crores of rupees on these animals without any sustenance in that sense, और वो पैसा लगाए पंप किए जा रहे हैं इसके अंदर, हालांकि ये कोई सस्टेनेबल नहीं है कि वो इतना पैसा अपने अपनी इनकम का इस पे लगा रहे हैं। क्या वजह है कि ये पैसा कम नहीं होता? लाइक आई नेवर गेट दिस। So you're talking about the consumer side ना, not the आई जो एम टॉकिंग जानवर अबाउट, बेचते हैं। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंज्यूमर जो पूरा साल रोता है कि महंगाई बहुत हो रही है, बट देन ही गोज ऑन टू द मार्केट एंड ही बाय समथिंग फॉर $500,000 and he brings it back home, he cuts it up and he eats it in 3 days. I'm talking about that consumer. Like, what's the psyche behind that mind? सो उसकी एक मैं एनालॉजी दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्कूल्स बहुत कम है, स्कूल्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। अगर हम लोग स्कूल्स बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम लोग जो है अगले 10 साल के अंदर जितने स्कूल नहीं बना सकते कि जितने ड्रॉप बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनके लिए हम लोग उनको केटर कर सकते हाँ, that's true, वो तो सही, बिल्कुल that's हैं। लेकिन हमारे हर मोहल्ले के अंदर इतनी मस्जिदें होती हैं कि आपको हर मोहल्ले के अंदर मस्जिद मिलेगी, that's true. मस्जिदों की कमी नहीं है। वही चीज़ है। और एजुकेशन के अंदर जो है जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट वाली चीज़ है उसके अंदर एक बहुत वैलिड कमी है। तो लोग जो हैं जब स्पेंडिंग की बात आती है, तो जब रिलीजियस वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं तो वो जो स्पेंडिंग का थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नहीं, क्योंकि that कुर्बानी okay, हाँ, that I get it, वो तो मुझे पूरा कुर्बानी का कॉन्सेप्ट समझ आ तो गया। लेकिन लेकिन कुर्बानी तो आप अपनी इस्तिताद के हिसाब से करते हो ना। मैं उन कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ जो, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कुर्बानी, मतलब आई एम टॉकिंग इस्ताद के अबाउट, साथ नहीं कर नहीं ना, हाँ, ये तो डिफरेंस है कि इस्ताद के ऊपर नहीं होती ना कुर्बानी। लोगों का ये होता है कि हम लोग जितना स्पेंड करेंगे अल्लाह ताला की राह में उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। तो हम ओके, लोग जो चलो, है हाँ, हाँ, आई गेट इट, वो तो चलो कुर्बानी का एस्पेक्ट हो गया ना, बट इवन अपार्ट फ्रॉम कुर्बानी, अगर हम चलो कुर्बानी को साइड पे भी करते हैं, नॉर्मल लोगों के खर्चे अगर आप उठा लो पोस्ट कोविड, एंड अगेन अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री विद दिस। रिसेंटली मैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस में नदीम हक को सुन रहा था, वो पाइट के, आई थिंक ही इज द हाँ, वीसी हैं, या उन्होंने, वो भी रियायत हम सब या वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ordering in food, getting the latest iPhone, getting the latest car, वो अभी भी एक significant segment of population investing in plots which are dead wealth for me कम नहीं कर रहे। वो मतलब डिस्पाइट द ग्रीवेंसेस विद इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, उनके लिए सस्टेन, मतलब उनके लिए पैसा, वो डेड चीजों में पैसा लगाए जा रहे हैं, और उसका मुझे तो कोई लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। मतलब कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि वो कुछ सस्टेनेबली सोचते ही नहीं है। मतलब अगर अगर उनको इतना भी बोल दो ना कि यू आर नॉट यूजिंग दिस, यू शुड सेल दिस एंड मे बी इन्वेस्ट द सेम मनी इनटू एन अपार्टमेंट एंड रेंट इट आउट, दे लाइक नहीं, हमारी गाड़ी है, दैट्स बेटर देन, क्योंकि गाड़ी से अच्छा, या तो फिर गाड़ी को करीम, या वो भी नहीं करते। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट माइंडसेट, और वही माइंडसेट मुझे कुर्बानी में भी नजर आता है। तो अ, उसके अंदर इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्टली, तो यू टॉकिंग अबाउट कि लोगों को जो है दे नॉट वेरी स्मार्ट विद देयर मनी, दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन यस, थिंग्स दैट यस, लुक गुड ऑन फेस वैल्यू rather than having a lot of monetary yeah, value. yeah, they're not like, they have the money, but a majority of the population is not smart with money. I'm not talking about mid-age fellows, I'm talking about people our age. They are not smart with money either, matlab, and what it hits Financial them, literacy
हाँ शेयर फाइनेंशियल लिटरेसी कोई ट्रेनिंग हुई थी हमारी K-12 के अंदर, दैट्स किंडरगार्टन 12, was there a financial literacy course that was taught to us or our generation? किंडरगार्टन क्या, हमें तो लफ्ज में नहीं पढ़ाया फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब a lot of people, I posted on LinkedIn the other day, a lot of people उनको तो लम्ब, अच्छा in 95% of the people उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था लम्ब आने से पहले। They never knew something known as a bank account, something known as a debit card, something known as a credit card limits, managing your credit cards, मतलब these things they're not taught to our people। And then जब हम ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, एंड देन व्हेन पीपल से, तो इवन ऑन ट्विटर, सो राइट नाउ देयर इज अ डिबेट ऑन ट्विटर जहां बहुत सारे प्रो पीटीआई अकाउंट्स कह रहे हैं कि कट ऑन योर स्पेंडिंग, डोंट गेट द लेटेस्ट सिविक, डोंट इन्वेस्ट इन दैट प्लॉट। अच्छा अच्छा, अब पेट्रोल पे एवरीवनस क्राइंग ऑन पेट्रोल, बट अगर आप उनकी कार ओनरशिप देखो तो दे हैव अ कार वर्थ 5 मिलियन, सही है? सो व्हाई नॉट गेट अ कार फॉर 1.5 मिलियन एंड यूज द सेम मनी फॉर पेट्रोल एंड अदर सेविंग्स? ये आर्ग्यूमेंट दे डोंट बाय इट, दे लाइक नो, ये गवर्नमेंट में, आई एम नॉट डिफेंडिंग पीटीआई बट दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट कंसर्न। अली हसनैन आए हुए थे, मैं टीपी की कॉल पॉड, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि हमारा परसेप्शन ऑफ स्पेंडिंग ही इतना अजीब सा है, लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या सीन है लाइक। So one of the things that I wanted to talk about was कि this इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो अभी स्टेट बैंक ने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया विद दी पार्टनरशिप ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट्स नोन एज द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ। तो उसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, तो मतलब कि एक अर्ली चाइल्डहुड के लिए, एक मिड के लिए और एक 18 to 29 ईयर्स के लिए। उसके अंदर हो क्या रहा है कि एक तो स्कूल्स के अंदर जाके लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे जो है एक ट्रेन प्रोफेशनल आया था जिसने बच्चों को जो है एक स्टोरी बुक है अनार का दरख्त, और उर्दू के अंदर है 3 क्लास के लिए, उससे ऊपर जो है इंग्लिश के अंदर है पोमेग्रेनेट ट्री। तो उसके थ्रू जो है, कहानी के थ्रू जो है फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रॉम वेरी यंग एज सिखाई जा रही है। So that was an initiative of the state bank. That's also so digital. cool। मतलब I remember, मतलब हम जिन स्कूल से पढ़े हैं, मतलब ग्रेड 8 में एक HBL के अंकल आए थे वो यंग सेवर अकाउंट बेचने के लिए एफपीएस के अंदर, जो मुझे पता है। मतलब उसके अलावा कभी हाँ, वो यंग सेवर्स अकाउंट बेचने आ गए थे, और उस जमाने में बड़ा सीन होता था कि यार चलो मेरा यंग सेवर्स अकाउंट है और ये और वो है, बट itself like एंड चलो हम दोनों तो कराची से उठ के लम्स चले गए, तो वी हैव दिस आइडिया ऑफ बजटिंग एंड एवरीथिंग। और मैं यहाँ पर आता हूँ एंड आई डोंट लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे छोटी छोटी चीजें नेविगेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन अ प्लेस 25% of where I'm living right now with another person, doing my laundry without a washing machine, budgeting and eating and everything। तो हमें एक आइडिया है लाइक पैसे किस तरह बचाने हैं, किस कौन सी चीज वर्थ इट है। बट talk to people in IBA who never left their home, they don't know about this, like they, मतलब it's an alien concept for them, मतलब। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि सिटीज के अंदर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा है, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी का असल बैकलैश होता है, जो एक लूजिंग की तरफ आप लेके जाते हैं मतलब इंसान को, जो है वो ये है कि जो लो इनकम कम्युनिटीज है उसके अंदर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग नहीं होती। तो हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, इट्स नॉट, दे डोंट हैव बैंक अकाउंट्स, एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आपका बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है तो आपका एवरेज सेविंग बढ़ेगी आपकी। our banking figures are so low, मतलब मतलब we are even way behind Nepal and Bangladesh and हमारी banking figures तो यार। and अच्छा, about the low income, टेलीको कंपनीज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो क्योंकि हर बंदे के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन सेम जो है बायोमेट्रिक से इजी पैसा है, टेलकोस काम कर रही है, बट हमारी, आई हैव दिस आर्ग्यूमेंट जिसको लोग बहुत प्रिविलेज कहते हैं, बट इवन आवर लो इनकम कम्युनिटीज, इफ यू ट्राई टू, मैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा, बट समवेयर अबव द पॉवर्टी लाइन, if you try to modulate or alter their spending habits, they feel offended, because I've tried this firsthand with people at home and people I know, कि अगर आप ये नहीं करो, ये कर लो, अभी नहीं जाओ, ये कर, they feel offended, they're like नहीं। तो मुझे वो भी समझ नहीं आता, लाइक मुझे ये समझ नहीं आता कि if the upper middle class and the middle class is willing to cut off their spending habits and sell some of the unused assets, तो लो इनकम क्यों नहीं करती? मतलब आई थिंक लो इनकम के पास जो है, जो जिन लोगों से शरीफ ने बात की है, दे विल फॉल नोवेयर क्लोज टू अ लो इनकम कम्युनिटी पर्सन।
लो इनकम कम्युनिटी के पास जो एसेट्स ही बहुत कम होते हैं, जो एसेट्स होते हैं दे हैव वैल्यू। और उसके अंदर ये भी है कि अगर घर है, घर के अंदर ऐसी इतनी कम चीजें हैं तो उनको मतलब कि घर को भी तो भरना है। हाँ, और मतलब वो अच्छा खैर तो फिर हम वो फिर फैमिली प्लानिंग वाली चीज में चले जाएंगे और फिर हम मतलब एक एक पूरे फैमिली बजटिंग प्लानिंग की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो है अगर वो तक मैट्रेस के नीचे पैसे जमा करते हैं तो दे आर बाउंड टू लूज अराउंड 5 to 7% ऑफ देयर सेविंग। एग्जैक्टली अच्छा ये एक तो मैट्रिस और एक ये जो हमारे यहाँ कमेटी सिस्टम है विच इज सॉर्ट ऑफ दैट्स अ मतलब वेरी गुड दैट्स अ वेरी गुड बट सेविंग बट सिस्टम। बट if you keep that same money or invest that same money तो isn't it better क्योंकि जो जिस हिसाब से हमारा रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है मतलब क्योंकि कमेटी इटसेल्फ तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आपको मिल रही है ना मतलब आप हर महीने 2,000 रुपए देते हो आपकी कमेटी 2 साल बाद निकलती है आपको 2,40,000 रुपए मिल जाता मतलब इस तरह कुछ मिलते होंगे मुझे नहीं पता बट समथिंग अराउंड दैट लाइन लेकिन जिस हिसाब से रुपये डिप्रिशिएट कर रहे हैं द नेक्स्ट ईयर इट माइट क्रॉस 200 द डॉलर माइट क्रॉस 200 मतलब रियल टर्म्स में तो आपके पैसे की कोई औकात ही नहीं रही खत्म हो गए आपके पैसे मतलब 50% से ज्यादा जो लोग कमेटियां डालते हैं इट्स आल्सो a social thing, it's not a very good savings इट्स द तरीका। गेट टुगेदर थिंग कि जब निकलेगी हम सब 10 लोग खाना खिलाएंगे और कपल्स ने कमेटी डाली हुई है और मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ बट उनको तो अपर ये मिडिल क्लास सेंस के अंदर नहीं, अपर मिडिल क्लास जो है ये सोशल थिंग है, लेकिन फॉर लो इनकम कम्युनिटी दैट्स अ वेरी गुड सेविंग का तरीका, क्योंकि उनके क्योंकि पास उनके जो पास है बैंकिंग एक्सेस नहीं है उनके पास बैंक का बैंकिंग एक्सेस एक्सेस नहीं के अलावा कमिटी जो है सेविंग्स के लिए नहीं डाली जाती। एग्जैक्टली कमिटी डाली जाती है कि आपको जो है जब एक पे आउट मिलेगा तो यू कैन अफोर्ड समथिंग बिग। तो मतलब कि मेरी जो है मैंने कमिटी में जो है नौकरानी हूँ, मेरे हस्बैंड जो है बहुत ट्रैवल करते हैं हर रोज अपने काम के लिए जाने के लिए। तो मैंने कमिटी डाली है कि मैं कमिटी निकलेगी तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूँ, अच्छा क्योंकि is it different to keeping the same money in one of your drawers every month and taking it out after 2 years या तो फिर आई थिंक वो इस चीज पे हेज कर रहे होते हैं कि हम पूरे साल देते रहेंगे 2 महीने बाद हमारी निकल आई तो हम अभी कुछ ले लेंगे जो आई थिंक इट्स अ नहीं, टाइमिंग ना फिर 2,000 रुपये रखना अपनी उसके अंदर, तो अगर फॉर एग्जाम्पल चलिए तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं तो आर दे मोर सिक्योर, या कैश के अंदर होते हैं तो आर दे मोर सिक्योर। मतलब कि स्पेंडिंग वाइज में बात कर रहा हूँ, कैश होता है तो मुझसे कम से कम मेरे बैंक अकाउंट में जब पैसे हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन मेरे पास जब कैश होता है तो कैश के अंदर हाँ स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती हाँ मैं कैश बिल्कुल भी नहीं रखता मतलब सीधी बात है आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ विद कैश मैं बिल्कुल मैं पॉइंट्स भी नहीं रखता मतलब मैं तो यहाँ लाइक या yeah that makes sense हमने हाँ yeah that's actually nice but yeah like just coming on like we're almost towards the end लास्ट जो मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा graduated from LUMS you had international contributions you've done TFP as well. Now you're moving to another thing. But how do you see yourself in the next 2-3 years? Do you want to stay in the Pakistani ecosystem? Do you want to do something else? Do you want to start a new venture? What's your like your individual है। outlook and what do you see Pakistan's outlook like in the next 5 years maybe? आई थिंक फॉर मी आई डू वांट टू गो टू ग्रेड स्कूल, लेकिन आई हैवंट स्टिल डिसाइडेड कि मुझे कब जाना है। सही है क्योंकि मेरे fair enough पेरेंट्स जो हैं दे आर इन कराची, so all in all I want to settle back in Pakistan. I'm not going to leave the country. fair फिर enough उसके अलावा जो है where do I want to see myself in the next 3 years, that's very hard question. तो मैं उसको जो है take one year at a time, तो मैं उसके यार ऊपर ही हाँ सोच को पता है कोविड के बाद ना आई हैव मेड दिस इन प्रिंसिपल कि कोविड के बाद ये प्लानिंग का कोई सीन ही नहीं है मतलब लाइक लिटरली यार प्लान करके करना है कि कल को कोई और डिजीज आ गया हम फारे हो जाएंगे हम सारे तो या आई पर्सनली थिंक क्या करना प्लान करके बट लाइक द पाकिस्तान इकोसिस्टम लाइक हाउ डू यू सी so दैट so I think the startup ecosystem is very promising. It's going to deliver a lot of things, and I think that's the most exciting place to be here. And I have been involved in that space, लेकिन I left that for 1 year, लेकिन I'm re-entering again. लेकिन जो startup space है that has a lot of promise to solve Pakistan's big problems. क्योंकि डिफेड हो गई, यूके एड हो गई, आपकी बड़ी कंसल्टेंसीज हो गई, वो पाकिस्तान का मसला नहीं हल कर सकती। आपके पास जो है सो मैकिंजी हैज वर्कड in the education sector,
फॉर द लास्ट तकरीबन 30-40 years. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं एंड इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रेड 3 का बच्चा या बल्कि ग्रेड 7 का बच्चा कैन नॉट रीड अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश. वो लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता इंग्लिश. उसे पूरा चैप्टर में पढ़ के सुना दूंगा तो उसे समझ नहीं आएगा. उसे इंग्लिश की मूवीज में दिखाता हूँ, उसे बिल्कुल समझ नहीं आती और सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश के अंदर. यू कैन सी के द लेवल ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन का हमारा हाल है. और मैकेंजी हो गई, बीसीजी हो गई, बेन हो गई, सारी बड़ी कंसल्टेंसी जो है एजुकेशन के अंदर काम करती रही. अगर काम कर रही थी 30-40 साल के अंदर तो कुछ चेंज आनी चाहिए थी. तो that is the reason that I do not have a lot of hope from these companies. And I have a lot of hope from the startup ecosystem. Okay, they can disrupt things in a good way. जैसे for example, edtech space जो है पाकिस्तान के अंदर, edtech space, yeah, that's edtech. और very I actually मैंने एक एजुकेशन पे कोर्स किया था and the edtech things happening in Pakistan, they're really amazing. Like the but do you think जैसे जैसे टैबलेट्स बढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा स्मार्टफोन्स और So I टैबलेट्स think यूज it's कर रहे हैं. going to be blended learning. तो मतलब कि कभी भी इंसान को जो है एजुकेशन से नहीं निकाल सकती, क्योंकि स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक सोशल बॉन्ड जो पहला बनता है आपका, वो आपके टीचर और आपके पीयर से बनता है. आप सोशलाइज करना जो है क्लासरूम के अंदर ही सीखते हैं. आप हर चीज जो है डिजिटल नहीं कर सकते. तो इट्स गोइंग टू बी ब्लेंडेड लर्निंग. लेकिन अभी एडटेक का प्रॉमिस ये है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो स्केल ऑफ प्रॉब्लम है और जो अंडर रिसोर्स हैं हम लोग, एडटेक कैन सॉल्व दैट. क्योंकि हर लोगों के पास जो है मोबाइल फोन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू के स्कूल की अवेलेबिलिटी. उनके इलाके में शायद स्कूल ना हो, लेकिन उनके इलाके में ऐसा कोई होगा जिसका मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और बहुत सारी चीजें हैं. बट या आई थिंक यस, आई पर्सनली थिंक I am a strong advocate of digital media despite the ills of it and despite the societal perceived ills of it. क्योंकि मेरा तो पूरा आगे प्लान ही है कि अगले 3-4 साल में मेरी पूरी रिसर्च ही अराउंड डिजिटल मीडिया, स्पेशली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि it's doing amazing stuff, yaar. Matlab, the kind of change it's bringing, it's phenomenal. But yes, it has been a pleasure. I will just stop then, and thank you everyone for watching, and do subscribe to my channel. And yeah, it's been